Good morning, 10th class. Okay, Vichi, you have not told me that which chapter you want to revise. Actually, we have already revised the whole syllabus, but this time I'm just then going to revise from the starting. We are going to start next chapter, that is our climate chapter. Okay, so in the climate chapter, I'm just going to talk about the questions that were discussed, sorry, not discussed, that was asked in last some years, like in 2025 and 2024. So these questions I am going to discuss from the, uh, again you can see here, geography, जो हमारे बच्चे 10 ईयर है उसमें से मैं डिस्कस कर रही हूँ. ओके, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर आर सम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, so please refer to these questions, picture based question. Not all of you have this 10 years, so that's why I'm going to discuss these questions from the 10 year. Okay, now there are some extract based questions also, so I will also discuss these extract based questions. Okay, so difficulty level will be higher. Now see here on the book, I am going to show you the book. First of all, see this question. This was asked last year in 2025. All these questions. So this is a picture-based question. Two pictures are shown here, figure A and figure B. In figure A, you can see here the southwest monsoon is shown, and on the other one, the northeast monsoon is shown here, because we can see here the arrows are drawn from northeast to the other direction, and here the winds are going from southwest direction, so it is called southwest monsoon. Okay, so question is, I have already discussed this question in your class also. Severe cyclonic storms are often formed over the Bay of Bengal during the retreating monsoon season. So first question is, name two states that are affected by tropical cyclones on the eastern coast of India. On the eastern coast of India, which two types of, or two name of the two states that are affected by the tropical cyclones we have discussed here, Odisha and West Bengal. These are the two states. Okay, next is the temperate cyclones cause less damage than the tropical cyclones. Give any 2 points to support this statement. Temperate cyclone, why this cause less damage than the tropical cyclones? So इसके रीज़न बच्चे देखें ज़रा. Reason is temperate cyclone cause less damage than tropical cyclone because they have weaker winds. वीकर विंड्स का बच्चे क्या मतलब है कि वहाँ पे विंड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा फास्ट नहीं होती है, वीक होती है. एंड कवर अ लार्ज एरिया. The winds are weaker but they cover a large area. On the other hand, tropical cyclones are stronger and more focused. They are more focused in a smaller area. तो बच्ची छोटे से एरिया पे ज़्यादा फोकस होती है, स्ट्रोंगर विंड्स होती हैं, सो दैट्स वाई दे कॉज मोर डैमेज, causing more severe damage than the temperate cyclone. Okay, this could be the reason here. 1 minute, let me clear the camera. Okay, next question देखें. Name the local wind that cause rainfall in the states of Assam and West Bengal in the month of April. In the month of April, बच्चे you can see काल बैसाखी was the winds that give rainfall to Assam and West Bengal. तो काल बैसाखी इसका आंसर था. How is this rainfall beneficial for the states mentioned above? Now we have to tell that why these states, the whichever winds, Kal Baisakhi, that gives rainfall, how it is beneficial to these states. I have already discussed in the Assam region, it is beneficial for the tea crop, and in the West Bengal it is beneficial for the jute crop. So यही आंसर बच्चे हमने राइट करना था. These local winds are accompanied by thunderstorms and bring rainfall. This rain in the month of April and May is good for tea crop in the Assam and jute and rice in the Bengal. जूट एंड राइस जो है वो वेस्ट बंगाल में ग्रो करते हैं, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा बेनिफिशियल है. नेक्स्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, ये देखो. With reference to figure A and B given below, answer the following questions. Okay, name the winds shown by arrows in figure A and B. Okay, फिगर ए ऑलरेडी बच्चे आई हैव टोल्ड यू इट इज़ साउथ वेस्ट मानसून एंड दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो आपने सिर्फ राइट ही करना है दैट इन द फिगर ए इट इज़ साउथ वेस्ट मानसून, इन द फिगर बी नॉर्थ ईस्ट मानसून. ट्रेड विंड्स उन्होंने राइट किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
How is the wind shown in figure A different from the one shown in figure B? The winds you can see here, southwest and northeast, they have just asked how is the wind in the shown figure A is different from the B. तो आपने बच्चे इन दोनों winds की difference जो है वो write करने हैं. Now they have written here question number 34. Okay, we will take out question number 34. You can see here, this is southwest monsoon winds and this is northeast monsoon, also called winter monsoon and it is called summer monsoon. ना इसके डिफरेंस बच्चे देखें, उन्होंने मंथ और सीज़न बताया हुआ है, देन टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेनफॉल, वेलोसिटी एंड रीजन्स, ये सारी चीज़ों में डिफरेंस जो है उन्होंने बताया हुआ है. नेक्स्ट सी है फर्स्ट पॉइंट इज दे ब्लो ड्यूरिंग रेनी सीजन that is the month of June to September. They blow during winter season that is months of December to February. These blow from the high pressure area to the on the sea to the low pressure area on the land. These blow from high pressure area on the land to low pressure sea area on the sea. India receives majority of its rainfall, about 75% from these winds. Mean to say from summer monsoon we get most of its rainfall. Our rainfall 75%, and these winds gives very little rainfall, that is about over 10%. These winds blow at a velocity of 30 km per hour. These winds blow at a very low velocity. These bring rain to the greater parts of India and these bring greater rain only to the Tamil Nadu coast. Only to the Tamil Nadu coast they gives rainfall. Okay, next question bache that I am going to discuss here. This was the last year question. Next question देखें. This one is asked in 2024. So geographical reason है बच्चे. Give a geographical reason for the following. The question is, Kolkata gets more rain than Delhi during rainy season. Okay, why Kolkata gets more rain than Delhi? Because देखो जरा, because of southwest monsoon. It is near the Bay of Bengal branch of the monsoon. Because you know that बच्चे कोलकाता is here. कोलकाता जो है यहाँ पर है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के सबसे ज़्यादा पास होता है कोलकाता. सो इट रिसीव्स मोर रेनफॉल. इन्होंने यही लिखा है, इट इज़ नियर द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून and that's why it gives receives more rainfall than Delhi. Next question. Though both are hill stations, Shimla experience snowfall during the winters but Utti does not. Utti में रेनफॉल नहीं होती है लेकिन शिमला में रेनफॉल होती है, जबकि दोनों क्या हैं, हिल स्टेशन हैं. तो इसका बच्चे सिंपल सा रीज़न उन्होंने क्या लिया है, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड. एक्चुअली शिमला इज़ एट हायर एल्टीट्यूड देन द ऊटी. ऊटी इज़ नॉट, इट इज़ क्लोजर टू द इक्वेटोरियल रीजन. तो इक्वेटोरियल रीजन के पास होने की वजह से ऊटी में स्नोफॉल नहीं होता है, बट शिमला इज़ एट हायर एल्टीट्यूड. नेक्स्ट इज़ विंटर मानसून ब्रिंग्स लेस रेनफॉल. Winds blow from high pressure area to the land, on the land to the low pressure area on the sea. मीन टू से आप बच्चे सीधा ये राइट कर सकते हो कि winds blow from land to sea and so it brings a little rainfall. These are usually dry, so it brings less rainfall. Okay, this was in asked in 2024 क्वेश्चन है ये. दैन इसके अलावा बच्चे मैं दूसरे क्वेश्चन देखो ज़रा. ये वाले बच्चे सारे डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन है ये 2008 का है. तो सिमिलर क्वेश्चन जो हैं डाटा से रिलेटेड आ जाते हैं. कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन ए एंड सुजेस्ट ओके सुजेस्ट अ रीज़न वाई द रेंज इज़ अ स्मॉल वन. ओके, उन्होंने यहाँ पे रेंज ऑफ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बच्चे फाइंड आउट करने को बोला है. एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यू नो दैट यहाँ पे कैसे होती है टेम्परेचर में बच्चे. उन्होंने ये स्टेशन, दो स्टेशन के बच्चे डाटा दिया हुआ है, यू कैन सी हेयर. उन्होंने स्टेशन ए का सिर्फ दिया था कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बताएं. रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए हमने टेम्परेचर को देखना है. सबसे मैक्सिमम कौन सा है देखो ज़रा. मैक्सिमम इज़ अबाउट 30. yes, 30. See here, range of temperature. तो इट इज़ 30.3 मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमने बच्चे करना है. मिनिमम यू कैन सी हेयर 24.8 and 24.4. yes, it is the minimum.
24.4। सो इसको बच्चे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट 9 - 4 5, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.9 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे टेम्परेचर रेंज जो है बहुत ज़्यादा कम आई है। नाउ टेम्परेचर रेंज कम होने का बच्चे क्या मतलब है कि देयर इज़ द प्लेस इज़ लोकेटेड नियर बाय एन ओशन, क्योंकि बच्चे हमेशा ऐसा होता है कि यू कैन सी हेयर 24 जनवरी में 24.4 है, 25.4 फरवरी में, 26.7 मार्च में। तो यू कैन सी हेयर टेम्परेचर वेरिएशन इज़ वेरी लेस, टेम्परेचर में वेरिएशन जो है बहुत कम हो रही है। तो दिस कुड बी द रीज़न दैट दिस स्टेशन इज़ लोकेटेड नियर बाय अ सी और वाटर बॉडी। तो इसका रीज़न यही दिया हुआ है, देखो 5.6 दे हैव टोल्ड हेयर 5.6, व्हाई दे हैव रिटन 5.6, 24.8 है। 25.9 ही आना था, इन्होंने गलत लिखा हुआ 25.6, इट्स ओके। तो स्टेशन इज़ नियर बाय द स्टेशन इज़ नियर द सी, दैट्स वाई द टेम्परेचर रेंज इज़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू स्टेशन हैज़ अ लोअर टेम्परेचर एंड वाई। कौन से दो स्टेशन का बच्चे उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ दीज टू स्टेशन विच हैज़ अ लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर का मतलब इन्होंने बच्चे टेम्परेचर रेंज नहीं बोला, उन्होंने लोअर टेम्परेचर बोला है कि दोनों में से कौन सा स्टेशन का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है। तो यू कैन सी हेयर यहाँ पे बच्चे स्टेशन बी का टेम्परेचर देखो, जनवरी में कितना है 8.1, इसका 8.9, और उधर ऑन द अदर हैंड जनवरी में 24.5, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रह रहा है। और यहाँ पे देखो ज़रा मिनिमम टेम्परेचर हमारा अप्रॉक्सीमेटली यही आ रहा है 8.1, यानी कि जनवरी में सबसे कम टेम्परेचर रह रहा है, और यहाँ पर जनवरी में 24.4 है। तो आप दे सकते हो स्टेशन बी बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड, दिस प्लेस मे बी एट द हायर एल्टीट्यूड। तो उन्होंने बस इन्होंने यही बच्चे एल्टीट्यूड का मतलब इट इज़ अवे फ्रॉम द सी और वाटर बॉडी, तो इसलिए उन्होंने हाई एल्टीट्यूड बोल दिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन बी। स्टेशन बी के एनुअल रेनफॉल बच्चे फाइंड आउट किया है। नाउ एनुअल रेनफॉल के लिए बच्चे मैंने आपको क्या बोला हुआ है, एनुअल रेनफॉल how will you find out, we will add all the rainfall values that is given here। तो रेनफॉल की वैल्यू बच्चे यहाँ पर है 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस एंड सो ऑन। तो सभी को बच्चे ऐड ही करना है, वी विल नॉट डिवाइड इट विद एनीथिंग एल्स, ओके। किसी से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है। तो इट इज़ 31.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ओके। ये बच्चे यूनिट्स राइट करना ज़रूरी है, तो यूनिट्स ज़रूर राइट करना। अगर यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर दिया है तो आप भी सेंटीमीटर राइट करोगे, अगर इन्होंने दिया है तो आप राइट करोगे, ओके। जस्ट कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे सिमिलर है आपका, यू कैन सी हियर। मैं इनमें से कोई क्वेश्चन आपको बच्चे डालने वाली हूँ, पिक्चर क्लिक करके मैं आपको डाल दूँगी, इसका आपको क्वेश्चन जो है वो मैं डालूँगी, ठीक है। फिलहाल आप देख लो ज़रा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन हेयर, ठीक है। लाइक सिमिलर क्वेश्चन इज़ हेयर। यहाँ पे जो प्लेसेस छोड़ी हुई हैं, ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं, इसका मतलब बच्चे ये नहीं है कि ये वाली जो वैल्यू हैं जहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है, नो, इट इज़ जस्ट गिवन हेयर। दिस इज़ आस्क्ड इन 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब इस यहाँ पे वैल्यूज़ हैं ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने रेनफॉल की जो है कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप ज़ीरो ही अज्यूम करके चलें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इन्होंने इससे रिलेटेड में भी क्वेश्चंस क्या हैं, कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन एक्स। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोला है तो अगेन मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे। नेक्स्ट नेम द रेनियस मंथ ऑफ द स्टेशन एक्स। नाउ दिस इज द स्टेशन एक्स, इसका रेनियस मंथ बच्चे कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसमें हो रही है अबाउट 17 नहीं 18.5, ये सबसे मैक्सिमम रेनफॉल है, तो इट इज़ द मंथ ऑफ अगस्त। लास्ट इज द स्टेशन एक्स लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया और इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। तो मैंने आपको हर बार बोला है बच्चे ध्यान से आप टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर रेंज देखो। टेम्परेचर रेंज बच्चे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वी कैन सी हेयर देयर इज़ अ ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस, मीन टू से मिनिमम टेम्परेचर रहता है जनवरी में और मैक्सिमम टेम्परेचर जून में अप्रॉक्सीमेटली 38.5 रहता है।
तो अगर आप डिफरेंस भी बच्चे फाइंड आउट करो, मिनिमम इससे ज़्यादा कम तो 38.5 इज़ मैक्सिमम, नो 41 कहाँ, हाँ 41 भी है, यस 41.0 है, 41.0 मैक्सिमम है और मिनिमम 8.4 है, तो डिफरेंस कितना ज़्यादा ह्यूज आ रहा है। तो वी कैन स्पीक दिस like this, that this station is located in the interior part of the country, so it has continental interior or annual range of temperature is because very high। okay, तो जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चे मैं आपको एक डाल दूंगी। नेक्स्ट आ जाएं, ये देखो बच्चे एक क्लाइमेटिक डाटा जो है वो आपको ग्राफ की फॉर्म में भी आया हुआ है। तो ग्राफ की फॉर्म में ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। In the video classes it is easy to show the pictures, in class it is not possible। okay, see here what are they saying, study the picture given below and answer the following question। now see here बच्चे ये एक क्लाइमेटिक डाटा उन्होंने दिया हुआ है, पिक्चर उन्होंने दी हुई है। ये बच्चे आपके क्या हैं, मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड सो ऑन। इस तरफ बच्चे उन्होंने रेनफॉल इन मिलीमीटर्स राइट किया हुआ है और इस तरफ क्या है, टेम्परेचर राइट किया है। मतलब दो ग्राफ है, एक ही ग्राफ पेपर पे दो ग्राफ बनाए हुए हैं बच्चे। एक टेम्परेचर का है, ये ग्राफ देखो ज़रा, टेम्परेचर कितना है स्टेशन पे रह रहा है, और ये वाला जो बार ग्राफ बनाया हुआ है ये किसका है, ये रेनफॉल का है कि किस मंथ में को कितनी रेनफॉल होती है। ओके, नाउ सी हियर, इफ़ यू सी हियर द टेम्परेचर का बच्चे ग्राफ में देखो अबाउट 20 से ऊपर और 25 से थोड़ा सा कम, अबाउट 24 चलो मान के चलो आप कि 24 तक टेम्परेचर जो है फर्स्ट 2 मंथ्स में, जनवरी और फरवरी में 24 तक टेम्परेचर रहता है। देन इट स्टार्ट्स राइजिंग, ठीक है, 30 के पास, मतलब 30 से बिलो ही रहता है, ठीक है, 30 तक गया। उसके बाद ये फिर अप्रैल के मंथ के बाद मई में पीक पे ऊपर है। देन उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया अबाउट जून एंड जुलाई में, ये जून में डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, नो जुलाई में डिक्रीज़ हुआ है। रेनफॉल लेकिन ज़्यादा हो रही है और टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। देन यू कैन सी हेयर अगस्त मंथ में थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो अबाउट 25 से ऊपर ही है लेकिन, ठीक है। देन अगेन इट इज़ राइजिंग सितंबर मंथ में या अक्टूबर में, यू कैन से अक्टूबर मंथ में जो है ये राइज़ किया है। देन अगेन इट इज़ डिक्रीजिंग। तो टेम्परेचर के ये बच्चे आपको एक लाइन शो की हुई है कि टेम्परेचर जो है वो 25 से अबव ही है, 25 से नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा है। यू कैन कंसाइड दिस लाइन। ओके, तो टेम्परेचर 25 से अबव ही है, उससे थोड़ा सा बिलो आता है लेकिन 25 से बिलो नहीं आता। नेक्स्ट देखें, रेनफॉल देखें। रेनफॉल बच्चे अगर देखो यहाँ पे ज़ीरो किस में है, फरवरी मार्च और अप्रैल, और इधर एक मिनट, अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे डी होना चाहिए था, इन्होंने ओ डाला हुआ है, इट्स ओके, दिसंबर। तो ये 3 मंथ में तो बिल्कुल ज़ीरो रेनफॉल है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी रेनफॉल बचे जनवरी मंथ में हो रही है, ठीक है। उसके बाद मई में यस मई में बच्चे थोड़ी सी जीरो से ऊपर गई है। देन यहाँ पे सीधा आ जाओ, जून में बच्चे काफ़ी रेनफॉल है, 400 सेंटीमीटर से अबव है, ठीक है। उसके बाद जुलाई में काफ़ी ज़्यादा है, 600 mm है। देन अगस्त में भी काफ़ी है, सितंबर में भी, अक्टूबर में देन लो हो गई, नवंबर में भी लो है। तो यहाँ से बच्चे अगर क्लाइमेटिक डाटा को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं पूछी जाएंगी, वह ऐसा क्लाइमेटिक डाटा नहीं है जैसा पीछे दिया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको दिखाएगी, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन जो पूछे हैं देखो ज़रा। स्टेट वेदर द अबव स्टेशन एक्सपीरियंस अ मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपने बच्चे यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं फाइंड आउट करनी, आपने सीधा क्या फाइंड आउट करना है, आपने सिर्फ टेम्परेचर को देख कर ही बताना है कि ये यहाँ पर टेम्परेचर रेंज, या फिर बोलो कि टेम्परेचर ज़्यादा मैक्सिमम या मिनिमम नहीं जा रहा है, तो दैट मीन्स किस टाइप का क्लाइमेट जो एक्सपीरियंस कर सकता है। यू कैन सी हेयर बच्चे टेम्परेचर 25 से नीचे आ ही नहीं रहा, लेकिन जब हम बच्चे अपने इंटीरियर पार्ट में होते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री 10 डिग्री इवन कि 10 से भी बिलो चला जाता है। यू कैन सी हेयर अब हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। तो यू कैन सी हेयर 25 से भी बिलो नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरीटाइम क्लाइमेट, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैरीटाइम और टेम्परेचर वेरिएशन, बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशन इज़ नॉट मच, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रही है इसलिए। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, नेम द विंड्स विच ब्रिंग रेनफॉल टू द स्टेशन। इस स्टेशन के ऊपर कौन सी विंड्स जो है रेनफॉल लेके आ रही है। यू कैन सी हेयर सबसे ज़्यादा रेनफॉल बच्चे जुलाई मंथ में हो रही है। वी नो दैट जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर में ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ प्रोबेबल स्टेशन एक्सपीरियंसिंग सच क्लाइमेट कंडीशन। तो किसी भी स्टेशन का बच्चे जो मैरीटाइम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है उसका अपने नाम देना है। तो यहाँ पे इन्होंने कोची राइट किया हुआ है, तो कोची वुड बी द नेम विच इज़ एक्सपीरियंसिंग दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ आपका बच्चे, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यूजली द सीजन सेट इन बाय द मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया, दिसंबर एंड जनवरी आर द मंथ्स with very low temperature in the northern plain. The mean daily temperature remains below 21 degrees Celsius over most part of the northern India. The night temperature may be quite low, sometimes going below freezing point in Punjab and Rajasthan. However, temperature don't fall too much in the peninsular region of India. So question is, identify the season, state any two features of the same. First of all बच्चे, if you have read this paragraph carefully, you can see here they are talking about the विंटर सीज़न। तो उन्होंने विंटर सीज़न के बारे में ही डिस्कशन किया कि इस मंथ में जो है टेम्परेचर काफ़ी बिलो चला जाता है इन पार्ट्स में, पंजाब और राजस्थान में काफ़ी बिलो चला जाता है, बट डेक्कन और पेनिनसुलर रीजन में ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं जाता है। तो दैट मीन्स कौन सा सीज़न होगा ये बच्चा हमारा विंटर सीज़न है। ओके, उसके बाद उन्होंने टू फीचर्स बच्चे उसके बोले हैं कि इसके विंटर सीज़न के दो फीचर्स बताएं। फीचर्स सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड वेदर है। इसमें बच्चे फीचर्स क्या हैं, क्लियर स्काई, प्लेजेंट वेदर, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी लो है, लो टेम्परेचर है, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, कूल एंड स्लो नॉर्दर्न विंड्स आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस विंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन डेली टेम्परेचर। मीन डेली टेम्परेचर का बच्चे क्या मतलब हुआ, मीन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम सारी की सारी टर्म्स को ऐड करके उसको डिवाइड करते हैं with the number of terms. Now what is mean daily temperature? It is the average of the maximum temperature and minimum temperature recorded during a day 24 hours. एक मिनट, उन्होंने मीन डेली टेम्परेचर बोला है। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए था, ये बच्चे डेफिनेशन गलत लिखी हुई है, प्लीज़ डोंट डू दिस। ठीक है, ये अगर होता तो यहाँ पे ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होना था, ना कि मीन डेली टेम्परेचर। मीन डेली टेम्परेचर जो है वो अलग होता है। दिस इज़ डेफिनेशन इज़ ऑफ ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, आपको लिखवाया हुआ है ना, ड्यूरिंग 24 आवर्स डिफरेंस बिटवीन द, उन्होंने यहाँ पे एवरेज ऑफ द, एक मिनट, एवरेज बोला है, एवरेज ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। ओके सी हेयर एवरेज बोला है, ठीक है, डिफरेंस नहीं बोला है बच्चे, उन्होंने एवरेज ही बोला है, एवरेज ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, फिर 24 आवर्स में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो एवरेज होती है उसको उन्होंने राइट किया हुआ है। ओके, इट्स ओके। वैसे ये क्वेश्चन बच्चे यूजली मतलब जैसे मीन एंड डेली टेम्परेचर ऐसी डेफिनेशंस नहीं आती हैं, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है जो टेम्परेचर डज नॉट फॉल मच इन पेनिनसुलर रीजन, गिव रीजन। क्या रीज़न है बच्चे, पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा फॉल नहीं करता है। विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन वी हैव लार्ज कोस्टल एरिया इंजॉइंग द इक्वेबल इन्फ्लुएंस ऑफ द सी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सी नियर बाई। सी की प्रेजेंस की वजह से बच्चे वहाँ पे इक्वेबल इन्फ्लुएंस जो है टेम्परेचर जो है वो रहता है, दैट्स वाई। नेम द विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग दिस सीजन, आल्सो मेंशन देयर वन फीचर। ओके, इन्होंने बच्चे कौन से सीजन की हम बात करें, विंटर सीजन की, इसमें कौन सी विंड्स चलती हैं और उनका एक फीचर बच्चे उन्होंने पूछा है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल। इन्होंने बच्चे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का नाम दिया है, इन्होंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारी नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि पंजाब वाले रीजन में चलती है उसकी डिस्कशन नहीं की है। तो आप सिर्फ इसी विंड का नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का ही नाम दे दो क्योंकि ये पूरी कंट्री में ब्लो करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी हियर, a similar question is there. Parts of western coast and northeastern India receives about 400 centimeter of rainfall annually. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and east of the Shyadris. A third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receive moderate rainfall. Snowfall restricted to the Himalayan region. Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghats. Okay, question is, parts of western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter of rainfall annually.
However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. Give reason. मतलब कि उन्होंने बच्चे पूछा है कि कुछ पार्ट्स में रेनफॉल 400 सेंटीमीटर तक होती है, बट कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पर ये रेनफॉल कितनी है, 60 सेंटीमीटर है. तो इसका रीज़न बच्चे उन्होंने पूछा है. See here, two reasons are given here. First is northeastern parts receive heavy rainfall due to the high relief which lies in the path of rain-bearing winds. रेन बेयरिंग विंड्स मतलब जिनमें बच्चे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उन विंड्स के ये बिल्कुल रास्ते में आती हैं. और ये कहाँ कौन सी प्लेसेस हैं, हाई रिलीफ है इनके. बिकॉज हैवी रेनफॉल क्यों होती है, ड्यू टू हाई रिलीफ. ज़्यादा रिलीफ हाई हैं, इसके रिलीफ का मतलब क्या है, इसके बच्चे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा हाई हैं, या फिर बोलो कि पहाड़ियाँ या हिल्स जो हैं वो ज़्यादा हाई हैं, दैट्स वाई. एंड रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस. पर गंगा वैली यानी कि जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात वगैरह हो गया, यहाँ पे रेनफॉल कम होने का बच्चे क्या रीज़न है, रेनफॉल इन द गंगा वैलीज डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट ड्यू टू डिस्टेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स. यहाँ पे बच्चे ईस्ट टू वेस्ट जाते जाते वैसे भी रेनफॉल डिक्रीज करती है. दूसरा ड्यू टू द डिस्टेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिलीफ फीचर. यहाँ पे कोई ऐसा रिलीफ फीचर यानी कि कोई माउंटेन हिल्स नहीं है हमारे प्लेन्स में, ये भी बच्चे रीज़न हो सकता है कि रेनफॉल जो है वो डिक्रीज करती है एज वी मूव टूवर्ड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. Next question is distinguish between windward and leeward side. Okay, the side of the mountain which lies in the direction of the striking winds is called the windward side and leeward side क्या है, the side over which the winds descend. जिस तरफ से बच्चे उतरती हैं, ठीक है, मतलब winds जो है नीचे को जाती हैं उनको हम leeward side बोलते हैं. Next is the rising air cools and condenses and gives heavy rain on this side. इस साइड पे बच्चे माउंटेन के देखो, इधर माउंटेन की ये वाली जो साइड है, यहाँ पे विंड जो है जब स्ट्राइक करती हैं, तो बच्चे यहाँ पे विंड जब स्ट्राइक करेंगी तो ये विंड्स क्या करती हैं, राइज करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि माउंटेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं. अब हाई होने की वजह से बच्चे जब ये राइज करती हैं, राइज करने की वजह से ये क्या करेंगी, ठंडी हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, और ठंडी होने की वजह से यहाँ पर ही रेनफॉल जो है वो करना शुरू कर देती है. बट व्हेन इट इज़ डिसेंडिंग, दूसरी तरफ जब ये नीचे को जाती हैं, लीवर्ड साइड में डिसेंड करती हैं, डिसेंडिंग एयर जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, नीचे नीचे जाते हैं ये गर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से ये काफ़ी कम रेनफॉल देती है. यू कैन सी हेयर द रीज़न इज़ गिवन. डिसेंडिंग एयर वार्म्स, जो एयर नीचे को उतरती है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, वार्म्स अप एंड बिकम्स अनसैचुरेटेड, सो कॉजिंग वेरी लिटिल रेनफॉल. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल बच्चे उन्होंने दी हुई है विंडवर्ड साइड की. वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट गेट्स हैवी रेनफॉल एज इट लाइज इन द विंडवर्ड साइड एंड द पुणे लाइज इन द लीवर्ड साइड इन एट द वेस्टर्न घाट एंड रिसीव्स वेरी लिटिल रेन. एक एग्जाम्पल दे दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. वी नो दैट इट इज साउथ वेस्ट मानसून. ओके, ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप देखो जरा. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly change from one season to the other. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. इसके बच्चे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे मार्क लिखवा रही हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन राइट करो, मतलब कि अभी क्वेश्चन राइट करो, फिर बाद में आपने मुझे आंसर लिख के भेजने हैं. फर्स्ट इज डिफाइन मानसून, व्हाट इज मानसून. Next question is name the monsoon associated with the months associated with the monsoon season. And third question is state any two features of monsoon season. Okay, ये 3 क्वेश्चन बच्चे आपके इसके साथ रिलेटेड हो गए. नेक्स्ट मैं आपको ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिखा रही हूँ, देखो जरा. हिंदुस्तान टाइम न्यूज़ हेडलाइन है ये, चेन्नई सिंकिंग इन द रेन. दिस इज़ द हेडलाइन, ठीक है, केस स्टडी टाइप है. ये दूसरा देखो, मॉनसून फाइनली रीच केरला बट ऑनसेट वीक. तो ये बच्चे 2 हेडलाइंस हैं. फर्स्ट हमारी जो हेडलाइंस हैं उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन, 1 मिनट, यस, यहाँ पे केयरफुली स्टडी द गिवन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज़ हाउ इज़ द सोर्स ऑफ रेनफॉल डिफरेंट इन बोथ द सिटीज़. ये दोनों सिटीज़ में बच्चे, एक तो इन्होंने चेन्नई की बात की है, दूसरे में केरला की बात की है. दोनों में सोर्स ऑफ रेनफॉल बच्चे पूछा है कि कैसे दोनों में सोर्स ऑफ रेनफॉल जो है वो डिफरेंट है. वी नो दैट चेन्नई दैट इज़ तमिलनाडु, ये वाला बच्चे पार्ट जो है ये रिसीव करता है रेनफॉल, कब कब रिसीव करता है, विंटर सीजन में. तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो हैं या रिपीटिंग मानसून रेनफॉल दे कर देते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट है केरला से, जबकि केरला रिसीव करता है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून.
यहाँ पे डायग्राम में शायद दिख जाए, यस इधर से ही जाती है रेनफॉल। ओके, सेकंड क्वेश्चन है राइट द एसोसिएटेड मंथ इन बोथ द केसेस। दोनों में एसोसिएटेड मंथ भी राइट करने हैं। चेन्नई बच्चे विंटर्स में रिसीव करता है तो विंटर वाले मंथ लिखने हैं, और यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून में आपको पता है गर्मियों वाले मंथ। तो यहाँ पे इन्होंने केस 1 में अक्टूबर बताया हुआ है और केस 2 में इन्होंने जून बताया हुआ है। इन केस 2 साउथ वेस्ट मानसून इज द बेसिक कॉज वेयर एज रेनफॉल इन द चेन्नई इज ड्यू टू द साइक्लोन्स। उन्होंने साइक्लोन्स लिखा है, या फिर हम जो विंटर्स में साइक्लोन्स आते हैं वो बता सकते हैं। ओके, तो ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड बच्चे 2 क्वेश्चन थे, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्टेट वाइज। नेक्स्ट आर अगेन सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बहुत बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन बच्चे छोटे छोटे ही हैं, वो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। जो क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको दिए हैं इस वाले पॉइंट से रिलेटेड, वो आपने लर्न एंड राइट वर्क जो है वो मुझे करके सेंड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।